Hello. Hello. Mahesh, can you hear me?
तुला सगळं झोप लागते पाणी आलं बाईच्या वस्तू पाहिजे बरं का चालेल खाली बस खाली बस Yeah, cyber guy.
We'll be starting shortly as participants are getting in. थोड़े समय में हम शुरू करने जा रहे हैं. We had emailed participants. I'm sure all of you must have got emails about the program. In case you intend to make others also join this program, you may WhatsApp them the meeting ID number, which is there on your screen on Zoom ID. It is 823-145-636. 823-145-636. You have to only download the Zoom app and create an account and join the meeting. Today is the law of vibration. That is what we are going to talk about. Please look at the rules of the meeting. Be on mute, then ask to speak, then unmute, and then go back to mute. See that the light falls on the face, only then your face is visible. Please do not eat anything during the meeting. Wear appropriate clothes. And if you're given a chance to share, see that you speak only in 1 or 2 sentences and then close, and then go back to mute. Welcome all.
We are at lecture 2 of the Insight series, Understanding the Law of Vibration. The first lecture was on the law of purpose. How many of us have attended that law of purpose? You can just put a yes on the chat so I would know. Participants who have attended the first session, just put a yes in the chat so I would come to know. All right, I'm seeing 5-6 people saying yes. All right. Please be on mute as soon as you join in. Okay. We have 20 participants who have joined in. We're waiting. I've played some music in the beginning. I'll play the rules again. Here are the rules for the program for the first timers who have joined in for the first time. जो पहली बार आए हैं उनके लिए ये rules है. जो पहले अटेंड कर चुके हैं वो जानते हैं ये rules. हमें म्यूट पर रहना है. अगर बात करनी है तो अनम्यूट करना है. बात करके फिर दोबारा से म्यूट पे चले जाना है. कोशिश ये रहे कि लाइट जो अब वीडियो में आ रहा है आपके तो आपके चेहरे के ऊपर आए ताकि आपका चेहरा क्लियर दिखे. मीटिंग के दौरान, इस सेशन के दौरान, प्लीज डू नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग द सेशन. अगर हमारा नेट कनेक्शन वीक है तो हम वीडियो को ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ ऑडियो पे रह सकते हैं. अगर किसी का जूम खुल नहीं रहा है तो वो संजय से कांटेक्ट कर सकते हैं. इफ यू नो संजय, संजय हैज सेंड यू एन ईमेल. संजय ने ईमेल सभी को भेजा था. We have 27 participants now. We'll be starting in another 5 minutes. 29 participants are there. I'm really very excited about this session. And you will see why. मुझे बहुत खुशी है इस सेशन में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आज का जो प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर है. पहले हमने लॉ ऑफ पर्पस पर बात किया था. Thirty participants are in. We have 35 participants. The time is 2:25.
Welcome to the Insight series. We have around 36 participants now. Please look at the rules of the program. Program के कुछ rules है, please ध्यान से पढ़िए इनको. You can see the time on the screen, 2:26. Insight series, session 2. Hello and welcome all and everyone. We are going to start now. I hope सभी का मोबाइल फोन बंद है और हम सभी फोकस्ड है इस प्रोग्राम के ऊपर. Welcome all. Before I jump into the program, let me just show you the rules of the program. I am sure all of you know the rules. सभी को rules इसके बारे में पता है कि प्रोग्राम कैसे होता है और नियम कैसे है, कैसे फॉलो करना चाहिए वगैरह. अगर आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है तो आप जरूर वीडियो को बंद कर सकते हैं और सिर्फ ऑडियो से भी सुन सकते हैं. क्विकली हम रिवाइज करना चाहेंगे जो हमारा लास्ट टाइम का सेशन हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, जहां पर हमें ये पता चला था कि लाइफ हमारी ऐसे ही नहीं होती है. लाइफ के पीछे कुछ कारण होता है और ये कारण को हमें ढूंढना रहता है. कारण क्या है? अगर हमें पर्पस पता चल जाए कि हमारा लाइफ किस पर्पस पे चल रहा है तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें लाइफ में एक लेसन बन के रहते हैं. लेसन्स वही होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं. अगर हम लेसन्स को ध्यान से समझते हैं, एक ही बारी में सीख जाते हैं तो वो लेसन आसान हो जाते हैं. अगर हम एक बारी में नहीं सीख पाते तो वही लेसन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं और फिर वो लेसन एक हार्ड लेसन बन के वापस से हमारे लाइफ में आता है. जैसे कुछ लोगों से हम बचपन में मिलते हैं, हमें पसंद आते हैं, कुछ लोग हमें पसंद नहीं आते, कुछ टीचर्स हमें पसंद नहीं आते. अगर हमने उनसे डील करना सीख लिया तो वो टीचर हमारे लाइफ में नहीं रिपीट होएंगे वापस. अगर नहीं सीखा तो वही टीचर हमें अलग अलग रूप में रिपीट होता हुआ नजर आएगा. वो किसी फ्रेंड के रूप में आ जाएगा वापस से, शायद कोई बॉस के रूप में आ जाएगा, हो सकता है कि हस्बैंड या वाइफ के रूप में आ जाए, हमें नहीं पता. तो जिंदगी के बहुत सारे सबक रहते हैं, हमें सबक को डिकोड करना है, सबक सीखना है. और जैसे हम सबक सीखते हैं तो हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, नेक्स्ट सबक के लिए तैयार हो जाते हैं. फिर मैंने आपको बर्थ डेट्स के हिसाब से भी बताया था कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपके नंबर्स क्या बताते हैं आपके बारे में. और मुझे यकीन है कि सभी लोगों ने इसके ऊपर काम किया रहेगा, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ तो इंसाइट इनको मिला रहेगा. ये मुझे इस बात पर ज्यादा यकीन है. चलिए इस पर एक खास सवाल किसी का रहेगा तो हम ले लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ पर्पस पे. अगर नहीं रहेगा तो हम शुरू करते हैं. If you have a question, you can just ask me in 1 or 2 lines. Does anybody have a question? All right, किसी का तो chat है, मैं एक बार देख लेता हूँ chat किसका है. So, Yes. yeah, I'm Vanita sir here. Vanita Jeswani. Hi, ma'am. Hi. Yeah, with this principle of purpose, I just wanted to ask, like now when we are aging and still if I don't think that my purpose of life is achieved, and I don't see also that the purpose, whatever I wanted to do, that I didn't do.
So ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ पर्पस रह जाते हैं एंड वी शुड थिंक दैट इट इज फॉर आवर गुड. रह नहीं जाते हैं, इतना ही है कि हमें समझ में नहीं आते हैं. तो हमारे लाइफ में जो बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने मैम, हमारे लाइफ में जो घटनाएं होती है, जो इवेंट्स होते हैं, वो हमको उस पर्पस की तरफ ढकेलते ही रहते हैं. हम चाहे या ना चाहे, कुदरत हमको सिखाते ही रहते हैं किसी भी तरीके से. हो सकता है कि किसी का पर्पस हो विजन ढूंढना, लक्ष्य ढूंढना ही किसी का पर्पस हो सकता है. हो सकता है कि किसी का पर्पस हो कि वो बैलेंस करे अपने लाइफ को. हो सकता है कि किसी का पर्पस हो कि वो क्रिएटिविटी करे, कुछ नया निर्माण करे. तो हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में सभी को अपने बर्थ डेट के हिसाब से भी बताया था. अगर समय मिला आज के सेशन के एंड में तो मैं दोबारा से वो बर्थ डेट वाली बात रिपीट करूंगा, ताकि वो सभी को पता चले. बहुत सिंपल है वो, किस तरह से हम अपना बर्थ डेट लिख के उसको ऐड करके उनके नंबर से भी हमें पर्पस कुछ पता चल सकता है. तो मैंने 2-3 प्रोसेसेस बताए थे. तो देखते हैं अगर समय आज मिला एंड में तो हम दोबारा से उसको छोटा सा रिवाइज करेंगे. ओके, राइट, थैंक यू वेरी मच. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. आज का जो हमारा विषय है, इट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन. प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन हम समझने जा रहे हैं. और प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है और इसका हमारे साथ में क्या संबंध है, अगर ये समझ में आ जाए बात तो क्या होगा हमारे लाइफ में, ये सब बातें हम आज समझने जा रहे हैं. प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन एक लॉक ओपन कर देगा हमारे लाइफ का. वो है क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी का. बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है लाइफ में. तो वाइब्रेशन हमें उस एरिया में लेकर जाएगा. इसका की क्या है, इससे हमें क्या सीखने मिलेगा कि हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी पे कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं. और उसका वैल्यू बहुत ही सुंदर है, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वाइब्रेशन, दैट इज लव. तो हम ये बातें आज समझने जा रहे हैं. मगर ये बातें जैसे हम समझे, you know, whenever we speak about the law of vibration, people often come to me and say that, you know, there is this law of secret. But actually the fact is that the law of vibration is right there and the law of secret is here. Point is क्या कि ये दोनों भी लॉ एक दूसरे के साथ में काम करते हैं. और जो भी हमारे ब्रेन के फ्रीक्वेंसी पे सबसे फास्ट डोमिनेंट थॉट रहता है, वो रिप्रोड्यूस हो जाता है हमारे जीवन में. तो ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, ये ब्रेन का फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको समझने के लिए हम आज कुछ साइंस भी समझने वाले हैं. जैसे फिजिक्स एक साइंस है, डेफिनेटिव साइंस है. और ये साइंस हम आज थोड़ा समझने वाले कि कैसे हर चीज जो विश्व में हमें दिखाई देती है, ठोस नजर आती है, वो क्या है, किस तरह से वो वाइब्रेट करती है. तो आइए हम इसको समझते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को. लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है? एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग इन दिस यूनिवर्स. हर चीज वाइब्रेट हो रही है और कुछ भी स्टैग्नेंट नहीं है, नहीं कुछ भी थमा हुआ नहीं है, टिका हुआ नहीं है, रुका हुआ नहीं है. एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग. यानी कि अगर आपको आजू बाजू में कोई टेबल नजर आ रही है, आपका मोबाइल फोन है, हर एक चीज, पानी का ग्लास है या जो भी है, वो वाइब्रेट हो रहा है. मगर हमें दिखाई नहीं देता, हमें तो ठोस दिखाई देता है. हाँ, मगर कौन से लेवल पर? एकदम सूक्ष्म लेवल पे, इसको हम बोलते हैं क्वांटम लेवल पर, ये फास्ट वाइब्रेट हो रहा है. और ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, इतने स्पीड से वाइब्रेट होता है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि रुका हुआ ही है. जैसे कभी आपने देखा रहेगा कि गाड़ी का जो चक्का है बहुत हाई स्पीड में रहेगा तो आपको ऐसा लगता है कि रुका हुआ ही है. तो बहुत सारी चीजें जो हमें आजू बाजू में नजर आती है, जो फिजिकली ठोस नजर आती है, वो एक्चुअल में एक क्वांटम लेवल पे वाइब्रेट हो रही है. सिर्फ वाइब्रेट ही नहीं हो रही है, वो बदल भी रही है. So everything that you see around yourself is vibrating at a quantum level, at an incomprehensible speed, which we cannot understand. तो ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन है. अगर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको, तो क्या हमारी बॉडी भी वाइब्रेट कर रही है?
हमारे बॉडी के सेल्स सभी एक सूक्ष्म लेवल पर बहुत फास्ट वाइब्रेट कर रहे हैं और वाइब्रेट करके वो एक रूप ले लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है। आइंस्टाइन ने इसके बारे में बताया है। आइंस्टाइन ने कहा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। हमें लगा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर मतलब ये क्या कहना चाहता है। आइंस्टाइन ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जो आम आदमी को नहीं समझ में आती है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो ऐसी बातें जो आम आदमी को नहीं समझ में आती। तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का क्या मतलब है? ये बोलना चाह रहे हैं कि E का मतलब है एनर्जी इज इक्वल टू मैटर मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। इनका ये कहना है कि जो मैटर है, जो ठोस चीजें नजर आती है, वो एक्चुअल में एनर्जी है। यानी कि हर चीज हम जो देख रहे हैं मैटर, वो एक एनर्जी का कंटेनर है। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज लाइक अ कंटेनर ऑफ एनर्जी। हाँ, अब ये एनर्जी जो है ये वाइब्रेट होके किसी और फॉर्म में टर्न हो सकती है, किसी और चीज का रूप ले सकती है। तो ये हर चीज के बारे में बता रहे कि हर चीज स्टोर्ड एनर्जी है। जैसे अगर आपने कोई ड्रम देखा, बोले ड्रम है, ड्रम नजर आता है पर उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। अगर उसको एक लकड़ी लेकर हमने जोर से उसके ऊपर बैंग कर दिया तो उसके अंदर से वो एनर्जी बाहर आती है और वही जो स्टोर्ड एनर्जी है म्यूजिक का रूप ले लेती है। आश्चर्य है कि ये हर चीज किस तरह से वाइब्रेट होती है। और ये चीज एनर्जी जो है, यानी कि पूरी दुनिया में क्या है, सिर्फ एनर्जी है जो वाइब्रेट करती है और किसी भी चीज का रूप ले लेती है। अब बोले सर इसका साइंटिफिक सबूत है क्या कुछ? हाँ, बिल्कुल है। अगर आपने पानी को देखा तो पानी एक फ्रीक्वेंसी पर पानी रहता है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो भाप बन जाता है, स्टीम। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाए तो वो बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। चलो हम इसके ऊपर एक छोटा वीडियो देखते हैं, किस तरह से पानी वाइब्रेट होके चेंज होता है। सो आई एम गोना आस्क ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस केयरफुली। आप देख रहे हो यहां पर आइस नजर आ रहा है सभी को। आइस जो है वो वाटर के ऊपर इसमें दिया है H2O। तो आपने देखा कि ये जो सफेद चीजें हैं वो दो हाइड्रोजन के पार्ट है और रेड है ऑक्सीजन का पार्ट। चलो हम देखते हैं कि किस तरह से ये वाइब्रेट होते हैं। I'll play this video। तो अगर आप देख रहे हो ध्यान से कि कैसे आइस जो है स्लो वाइब्रेट हो रहा है, वाटर थोड़ा फास्ट, और स्टीम देखो वाइब्रेट होती जा रही है। दोबारा से देखते हैं हम इसको। आप देख रहे हो कि कैसे ये मॉलिक्यूल्स, ये छोटे छोटे एटम्स है, ये फास्ट घूम रहे हैं। आइस के अंदर कितने स्लो घूम रहे हैं, वाटर में कैसे घूम रहे, स्टीम में कैसे घूम रहे। मगर एक्चुअल में ये क्या है, सभी चीजें वाइब्रेट हो रही है। तो खास बात हमें क्या समझनी है, जब इन्होंने कहा कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, तो यही कहना चाह रहे कि हर चीज स्टोर्ड एनर्जी है और वो एनर्जी रूप बदलते रहती है। जिस तरह से चीजें वाइब्रेट होती है उससे वो एनर्जी अपना रूप बदल लेती है। एनर्जी रूप बदल के कहां चली जाती है, अभी ये खास बात हमें समझनी है। तो आइंस्टाइन जो कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। चलो हम एक और एग्जांपल समझते हैं इससे। अगर मैं कहूं आपसे कि जो वाटर है ये एक एनर्जी है, तो हमने देख लिया। लेट अस लुक एट अ फायर क्रैकर। ओके, एक दिवाली का एक और एग्जांपल देखते हैं। यह है एक सुतली बॉम्ब दिवाली का। ये ऊपर से बड़ा सिंपल नजर आ रहा है पर इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, और ये जब भी एनर्जी को हम रिलीज करते हैं तो वो किसी और चीज का रूप ले लेती है। ये खास बात है। सो लेट अस वॉच दिस। दिस इज अ स्टोर्ड एनर्जी, और जब भी इसको हमने ट्रिगर कर दिया इस फ्रीक्वेंसी को हायर फ्रीक्वेंसी पे, तो ये गायब हो गई।
गायब होगी तो किधर चले गई? हाँ, ये खास बात है. इट्स अ रियल क्वेश्चन टू आस्क इज, एनर्जी गायब हो गई तो किधर चले गई? एनर्जी किसी जाती नहीं है. इसके लिए हमारे पास फिजिक्स का एक बड़ा सा लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्या कहता है ये लॉ? व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कोई बताएगा मुझे? Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to another. एग्जैक्टली. एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं होती है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती है, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है. एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. यानी कि हर चीज, everything is energy around you, vibrating at incomprehensible speeds that has the ability to take any form. वो भाप बन जाती है, बर्फ बन जाती है, वो continuously vibrate हो रही है. Now we also have the science to prove this. So हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हाँ, अभी उसके अंदर भी एनर्जी है क्या? द आंसर इज यस. और वो एक सुतली बॉम्ब से कई करोड़ों टाइम्स हायर है, कई करोड़ों टाइम्स. तो आइंस्टाइन एक्चुअली यही कहना चाह रहा है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, वो ridiculous amounts of time is higher than that of a small festival bomb. आप बोलेंगे ये कैसे मान ले हम? तो अगर आपने अपने किसी भी बॉडी के सेल को मैग्नीफाई किया, उसको एक मैग्नीफाइंग पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम उसको अंदर 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 जाते गए, तो हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी जो है छोटे 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 सेल्स की है. और ये जो सेल्स है ये कंटिन्यूसली अपने आप को ब्रेक कर रहे और नए सेल बना रहे, ब्रेक कर रहे, नए सेल बना रहे, ब्रेक कर रहे, कंटिन्यूसली बना रहे. एक छोटा बच्चा है, 1-2 महीने के बाद में देखे तो उसका चेहरा बदल गया है, 6 महीने के बाद में बदल गया है. तो ये बदलते जा रहा है. कैसे बदलते जा रहा है? हमारे भी चेहरे बदलते जा रहे हैं. अगर बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट भी किया है कि अपनी सेल्फी लेते हैं हर रोज हर रोज हर रोज और देखते हैं कि धीरे 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 चेहरा बदलता है. ऐसे एप्स भी है जो बताते हैं कि आपको चेहरा बदलता है. यानी क्या होता है? एग्जैक्टली हो रहा क्या है कि हमारे सेल्स ब्रेक हो रहे, नए सेल्स बन रहे, पुराने मर जा रहे, नए, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. यानी कि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस वाइब्रेट करती है. अब इसका एक और सॉलिड सबूत क्या है कि बहुत सारे जो रिलीजन्स है वो ये बिलीव करते हैं कि बॉडी जब खत्म हो जाती है तो उसका स्पिरिट जिंदा रहता है. सोल इज अ एनर्जी एट अ डिफरेंट लेवल. फिजिकल वर्ल्ड में हमें ह्यूमन बॉडीज नजर आती है, फिर डेथ के बाद में ये सोल बन जाएगी, यानी कि एक स्पिरिचुअल लेवल पर चला जाती है. सो वी हैव ए स्पिरिचुअल लेवल, ए फिजिकल लेवल एंड वी हैव अ क्वांटम लेवल. ये 3 लेवल्स है, प्लेन्स है लाइफ के. हम फिजिकल लेवल को समझ पाते हैं, पर इसके बियॉन्ड हमें जो नहीं दिखता है हम वो नहीं समझ पाते हैं. इसका अर्थ यह है कि हमारी बॉडी और ये नेचर, ये सब कनेक्टेड है. कुछ लोगों से मिलकर आपको बहुत मजा आता है, तो उनके वाइब्रेशंस आपसे मैच हो रहे हैं. कुछ जगह पर आपको जाके बहुत शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो वो जगह के जो वाइब्रेशंस है हमसे ट्यून हो जाए. लोग कहते हैं ना कि उसका फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच हो गया, ही इज ऑन द सेम वेवलेंथ. तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, ये क्या एनर्जीज है, ये पूरे हमारे इर्द गिर्द है ही, कंटिन्यूसली रहते ही है. और ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है. कुछ लोगों से मिलके अच्छा लगता है तो उनकी एनर्जी हमें मिलती है, बुरा लगता है तो वो एनर्जी दूर होने लगती है हमसे. तो ये पूरा विश्व जो है एक एनर्जी है जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, और हमारी बॉडी इससे जुड़ी हुई है. इसी के लिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें समझना है, which is the highest form of vibration. Highest form of vibration क्या है? Faith, विश्वास,
प्यार, लव, पीस, ये हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस है। हम वो भी समझेंगे, मगर अभी ये समझ रहे हैं कि हर चीज एक सूक्ष्म लेवल पे वाइब्रेट हो रही है, करेक्ट? और हमारी बॉडी उसके साथ में संबंध रखती है। वाइब्रेशंस कितने प्रकार के होते हैं, चलिए अभी ये समझते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे इर्द गिर्द ये सभी वेव्स घूम ही रहे हैं कंटिन्यूसली, यानी कि मोबाइल टावर है, वो कुछ रेडिएट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं इसको, और वो रेडिएट कर रहा है कुछ, हमें दिखाई नहीं देते। ह्यूमन बीइंग का कैपेसिटी उतना ही है कि वो सिर्फ इन सभी वेव्स में से, रेज में से सिर्फ सनलाइट ही देख पाता है। आश्चर्य है ना? यानी कि ये जो आप देख रहे हो नीचे रेडियो के वेव्स है, रेडियो वेव्स अलग तरह के वेव्स है। अगर हमको ये पकड़ना है तो हमें कोई रिसीवर चाहिए, कहां से ट्रांसमिट हो रहा है, कहां से रिसीव हो रहा है, तो रेडियो वेव्स है। फिर और क्या वेव्स है? माइक्रोवेव भी है, जो हमें नजर नहीं आता मगर है, इससे खाना पकता है। फिर कौन से रेज है? एक्सरे भी है, आप देख रहे हो यहां पर एक्सरे, जब किसी तरीके से हम उसको कैप्चर कर पाते हैं तो हम वो समझ पाते हैं कि अरे हाँ, एक्सरे में ये नजर आता है। फिर है गामा वेव्स, जो एमआरआई वगैरह स्कैन्स में ज्यादा यूज होते हैं। गामा रेज जो बहुत ही डीप लेवल पर जाते हैं बॉडी में, जो बोन का डेंसिटी तक माप कर सकते हैं। टीवी का तो बड़ा एग्जांपल है कि कुछ चीजें रेडिएट होते ही रहती है, तो हम अपने टीवी पर वो वाली नेटफ्लिक्स के वेव्स हो या हॉटस्टार के हो या किसी न्यूज चैनल के हो, ये कंटिन्यूअसली हमें मिलते रहते हैं। सनलाइट, तो ये सभी वेव्स है हमारे आजू बाजू में घूम रहे हैं, हाई स्पीड से घूम रहे हैं, और हम पकड़ नहीं पाते। हम क्या पकड़ पाते? सिर्फ सनलाइट। हाँ, मगर कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है क्या कि कोई पर्सन को आप याद कर रहे हो, बहुत 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 याद कर रहे हो, और अचानक फोन की घंटी बजी और वो पर्सन मौजूद था? ऐसा हुआ है कि आपके साथ? प्लीज से यस और नो ऑन योर चैट। कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है? सिर्फ आप हाथ खड़ा कर सकते भी है, और जस्ट रेज योर हैंड इफ दिस हैज हैपेंड विथ यू सो दैट आई कैन सी। कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि आप किसी को बहुत दिल से याद कर रहे हो और उस पर्सन का फोन बज गया और वही पर्सन था? हाँ, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। तो आप बोलेगे ये क्या कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक से हो गया ऐसा? जी नहीं, इत्तेफाक से नहीं हुआ। आप उसको याद कर रहे थे, आपने एक्चुअली उसका सिग्नल पकड़ लिया। सिग्नल पकड़ा, इसका मतलब ही क्या है कि आपने उसके फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया, उसके फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया और आपने उसका सिग्नल पकड़ लिया। यानी कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो बहुत डेप्थ से, तो वो फ्रीक्वेंसी पर उस पर्सन के ब्रेन ने अगर उसको रिसीव किया, जैसे ये रेडियो रिसीव करता है या टीवी रिसीव करता है, तो उसका ब्रेन वो इंटरप्रेट करता है कि अरे हाँ, मुझे किसी ने याद किया, और वो उठा के फोन आपको फोन कर देता है। सिर्फ यही नहीं, क्या आपके साथ में ऐसा भी कभी हुआ है कि आप किसी सॉन्ग के बारे में या किसी मूवी का डायलॉग सोच रहे थे, एक पर्टिकुलर सीन सोच रहे थे किसी मूवी का, और आप टीवी पर सर्फ कर रहे हो चैनल्स, और अचानक वही मूवी चल रही थी और वही सीन चल रहा था? ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? अरे वाह, ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ में ये हुआ है। वेरी गुड। कभी कभार आप कोई गाने के बारे में सोच रहे हो और अचानक रेडियो पर आपको वो गाना सुनाई दिया। यानी कि क्या हमने किया, सभी यहां पर स्क्रीन पे ध्यान दे, कि हमने ये फ्रीक्वेंसी को इंटरप्ट कर लिया, ये रेडियो की फ्रीक्वेंसी को इंटरप्ट किया, और यहां पर ही हमने वो सिग्नल पकड़ लिया। क्या बात है!
इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी में ये कैपेसिटी है कि वो ये वाइब्रेशंस को कैच कर सकता है। कुछ लोग इंट्यूशन से काम करते हैं, उनको इंट्यूशन पहले से ही आते रहता है ये होने वाला है या नहीं होने वाला है। कुछ लोग क्रिकेट देखते हैं तो उनको वो पहले से इंट्यूशन आता है कि ये बॉल पर पर्सन आउट होने वाला है या ये बॉल पे 6 मारने वाला है। ऐसा कितने लोगों के साथ में होता है? Say yes in your chat if you have that intuition or if you have experienced this, कि आपने बोला कि हाँ हाँ ये हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, और आपने देखा अरे ये हो चुका है, and you are surprised। लोग बोलते हैं यार आपने कुछ तो बैटिंग करना चाहिए क्योंकि आपको इतना अच्छा इंट्यूशन आ रहा है। ऐसे भी बहुत लोगों के साथ में हुआ है। सही बात है, कुछ लोग मुझे यस बोल रहे हैं, सही बात है। यानी कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट, जैसे टीवी कैसा एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जो हजारों से सिग्नल्स है, हजारों से फ्रीक्वेंसीज है, हर चैनल को वो बहुत अच्छी तरह से पकड़ पाता है। कुछ लोगों को एचडी सिग्नल भी पकड़ पाता है, कुछ टीवी एचडी सिग्नल भी पकड़ पाता है। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या हमने अपना इंट्यूशन को या अपने ब्रेन को उस तरह से उस लेवल पर, उस फ्रीक्वेंसी पर रखा है क्या कि ये सभी फ्रीक्वेंसी वो पकड़ पाए? फैक्ट ये है कि हमारा ब्रेन फाइन ट्यून हो सकता है। इट हैज द एबिलिटी टू कैच दीज वाइब्रेशंस दैट आर देयर इन द एयर, इन द वर्ल्ड, एवरीवेयर। वाओ! क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस है, ये जो एनर्जी है, ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, इसकी क्षमता क्या है कि ये स्पेस और टाइम के थ्रू फास्ट ट्रैवल कर सकती है। ये स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है, टाइम में ट्रैवल कर सकती है, वाटर में ट्रैवल कर सकती है। इतनी फास्ट ट्रैवल करती है। यानी कि अगर हम देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये कैसे एप्लीकेबल होगा? खास क्वेश्चन ये है। अभी ये सभी स्लाइड देखें। Our thoughts and feelings have an electromagnetic reality and it manifests wisely। तो हम जैसे चल रहे हैं विश्व में, भले हमें विचार दिखाई नहीं देते लोगों के, मगर क्या होता है कि हम इस तरह के सिग्नल्स भेजते रहते हैं वर्ल्ड में। इस प्रोग्राम में हमारे पास में 296 रजिस्ट्रेशंस थे, मगर कितने लोग पहुंच पाए? अभी मुझे 114 लोग नजर आ रहे हैं। जो भी जिस तरह से भी ट्यून्ड है वो चैनल पकड़ने वाला है। पूरे विश्व में इतनी सारी जानकारी अवेलेबल है, इतने सारे सिग्नल्स हवा में घूम रहे हैं, आप क्या कैच कर रहे हो? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट सिग्नल्स आर यू कैचिंग? आर यू कैचिंग द वाइब्रेशंस ऑफ द वायरस बिकॉज इट्स अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी? Or are you catching the signals of the higher frequency of love and healing and health, joy and prosperity? आप कौन से फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो? वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप वो सिग्नल कैच करने वाले। हर एक पर्सन को जो जानकारी मिल रही है, हर एक पर्सन अपने घर में ही है, मगर आप कौन सी जानकारी के लिए फाइन ट्यून्ड हो? आपने अपना रेडियो कौन सी फ्रीक्वेंसी पर सेट किया है? जो भी फ्रीक्वेंसी पे आपने अपना रेडियो सेट किया है, वो फ्रीक्वेंसी आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका ब्रेन कैच करेगा और वैसे चीजें आपको मिलना शुरुआत हो जाएगी। तो ये साइंस ने भी अभी साबित किया है कि हमारे जो थॉट्स है वो टाइम और स्पेस को लांघ के पहुंच जाते हैं दूसरी जगह पर, और थॉट का जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड से कई ज्यादा। 1 मिनट में आप कहां से कहां पहुंच जाते हो ये हमें पता नहीं चलता। सो द स्पीड ऑफ थॉट्स is higher than the speed of light, and we are constantly broadcasting thoughts, constantly receiving thoughts, broadcast receive, ये constantly हो ही रहा है। इनफैक्ट विचार आता है वो चेंज होता है और वर्ड्स के रूप में सामने आता है, फिर सामने वाला वो वर्ड्स को कैच करता है, उसके ब्रेन में इंटरप्रेट होता है और वो समझ पाता है। तो ये भी एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक तरीके से ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म
to the other. Some people will get that energy and start exercising. तो वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, मसल्स का रूप ले लेता है. तो सब हमारे अंदर अलग अलग रूप ले ही रहा है. Continuously it is vibrating. So I'm going to pause a little and ask if you have a question here. Are you understanding? Am I going too fast, too slow, or are you getting what I'm saying? If you're getting what I'm saying, just raise your hand. अगर आपको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, yes, its speed is okay, no issue. Okay, lovely. Does anybody have a question so far? Whatever I've described, you can ask me if you have a question so far. All right. I think it's going in right direction. All right, great. Hello. Yes. Yeah, I have a question. Like, it is not specific to person. How can other things catch the frequency? Like आप बोल रहे थे water, like anything. In that हाँ, मैं ये बोल perspective. ही रहा हूँ कि ये एनर्जी कैच करता है वाटर. हम अगर वाटर के अंदर क्षमता है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे. पानी, हमारा जो बॉडी है वो 70% वाटर है. तो हम जो भी अपने बॉडी को बोलते हैं, तो आगे हम कभी किसी वीडियो में देखेंगे ये जरूर कि कैसे लोगों ने पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. पानी को आप क्या बोलते हो और कैसे रिसीव करते हो, तो वो अपने लिए, आपके लिए वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा. बहुत सारे लोग खाने को देखकर क्या बोलते हैं, अरे ये बहुत ज्यादा हो गया, अरे बहुत तेल है इसके अंदर. द मोमेंट यू से दैट, यू आर चेंजिंग द वाइब्रेशंस ऑफ द फूड. बोलना क्या चाहिए, अरे धन्यवाद, खाना मिला है. पानी को ब्लेस करो, थैंक यू बोलो, क्योंकि पानी भी एक वाइब्रेशन ही है, हमारा बॉडी भी एक वाइब्रेशन ही है. तो सभी चीजें ये कैच करती है. एक और सिंपल आंसर में देना चाहूंगा, एनिमल्स भी हमारे वाइब्रेशन को कैच करते हैं. कभी आपने सोचा है कि व्हाई डू डॉग्स बार्क एट दोज पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स? भाई कुत्ते उन्हीं को क्यों भौंकते हैं जो उनसे डरते हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं तो वाइब्रेशन पकड़ लिया फियर का. सिर्फ डॉग्स ये कैच करते हैं क्या? जी नहीं, प्लांट्स भी ये कैच करते हैं, ट्रीज भी ये कैच करते हैं, हर एक चीज, क्योंकि हर एक चीज वाइब्रेशन ही है. पत्थर है वो भी वाइब्रेशन है, किसी और ठोस फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बर्फ के बारे में बताया था, किसी और ठोस फॉर्म में, और सिर्फ ट्रांसफॉर्म होते रहता है वो एक चीज से दूसरी चीज में. चलो एक और हम छोटा इस पर एक वीडियो देखते हैं ये समझने के लिए. पेपर जो है, a paper has 5 lakh, it is 5 lakh atoms thick. एटम्स एक बहुत ही छोटा है, 5 लाख एटम्स है पेपर का थिकनेस. हाँ, मगर जैसे ही हमने इसको एक मैचस्टिक से आग लगा दिया, तो क्या करते हैं हम लोग, उसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते, उसका वाइब्रेशन फास्ट 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 कर देते, तो वो फास्ट वाइब्रेशन में वो अपना रूप चेंज कर लेता है. चलो हम ये वीडियो में देखते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? पेपर is, we have just increased its vibration, its frequency, तो अपना रूप उसने बदल लिया. It either becomes ether or gas or air. अभी आप बोलोगे भाई पेपर को कैसे पता चला? हर चीज वाइब्रेशन है, हर चीज आपके आजू बाजू में जो भी नजर आ रहा है, एक चॉकलेट भी वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेट करके वो आकार ले लिया उसने. That is the point. All right. हाँ, अभी I hope I have answered your question. Yes. All right, beautiful. So now is the big question. The big question क्या है कि इस law of vibration को तो हम समझ गए कि हर चीज वाइब्रेट हो रही है और किसी फ्रीक्वेंसी पे हमको उसको कैच करना है. हेल्थ के अलग वाइब्रेशंस है, वेल्थ के अलग वाइब्रेशंस है, हर चीज वाइब्रेट हो रही है. तो इसका मैं फायदा कैसे ले सकता हूं? हाउ कैन आई यूज इट इन माय पर्सनल लाइफ? हाउ कैन आई मेक यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल, दिस लॉ ऑफ वाइब्रेशन?
दैट इज अ रियल क्वेश्चन. तो सभी अभी इस बात को जानते हैं. हाउ कैन वी लूज द लॉ? सो आई एम नाउ गोइंग टू गेट इनटू द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ. ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. नेगेटिव थॉट्स, जैसे ही हम नेगेटिव विचार आता है, बहुत सारे लोगों को टीवी देख देख कर आ जाता है कि अभी हम सुबह उठ के ही लोग सीधा मोबाइल फोन देख के देखते कौन से कंट्री में कितने लोग मर गए. इज दिस रियली गुड? बिकॉज द मोमेंट यू आर कैचिंग दैट सिग्नल, you start vibrating on that signal. Do you really want this? That's the question you need to ask. Some people, you know, in my college group, there are a lot of people who say, ये fact है, ये reality है. अब मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, भाई तुमको ये चाहिए क्या? क्या सिर्फ यही एक रियलिटी है क्या वर्ल्ड में? तुम जिंदा हो, ये भी तो रियल है. अच्छाई भी बहुत सारी है वर्ल्ड में, हेल्थ के वाइब्रेशंस भी है, लोग ठीक भी हो रहे हैं. हम ये क्यों नहीं देख रहे? हमने अपना ध्यान क्यों नहीं उस तरफ लगाया है? सो व्हेन यू हैव नेगेटिव थॉट्स, इट क्रिएट्स नेगेटिव फीलिंग्स. फीलिंग्स थॉट से 10, 15, 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग है. करेक्ट? नेगेटिव फीलिंग्स आ गई तो हम लो फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस पर ट्यूनिंग करना शुरू कर देते हैं. और जैसे ही हम लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस पर जाते हैं तो क्या आता है? वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिव पीपल, नेगेटिव इवेंट्स, नेगेटिव रिजल्ट्स. ओह, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं. करेक्ट? तो मैं इसका फायदा कैसे लूं? तो अगर मैंने सही विचार रखा, पॉजिटिव थॉट रखा, फिर पॉजिटिव थॉट प्रोड्यूस क्या करेगा? पॉजिटिव हैप्पी फीलिंग प्रोड्यूस करेगा. वेरी नाइस. हैप्पी फीलिंग क्या करेगा? हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को कैच करेगा. हाई फ्रीक्वेंसी एचडी वाइब्रेशन को कैच करेगा. और वो क्या क्रिएट करेगा हमारी जिंदगी में? पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव इवेंट्स, ग्रेट रिजल्ट्स. जो हम चाह रहे हैं वो रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर देगा. So it's very simple. Negative thoughts, negative feelings, low vibration, low result. Positive thoughts, happy feeling, high frequency vibration, great result. Are you getting this? तो हमें क्या करना है? हमें अपने विचारों को ट्यून करना है, क्योंकि हमारे विचार स्पेस, टाइम, वाटर सबसे ट्रैवल कर सकते हैं. इस प्रोग्राम में हमारे यहाँ पर दिल्ली से लोग हैं, इस प्रोग्राम में मुंबई से लोग जुड़े हुए, चेन्नई से लोग जुड़े हुए, कहां से लोग जुड़े हुए, क्योंकि ये सभी एक फ्रीक्वेंसी भी अभी वाइब्रेट कर रहे हैं. कितनी खुशी. Sir, can I interrupt in between? Yes, you have a question? I have one question. Go on. I fully agree with this philosophy, but sometimes what happens, we are working on some things with full energy, full efforts, still we are not getting the results. So what is that? What is that? That's a very good question. कभी कभार हम लोग काम करते हैं, संतोष का ये सवाल है, और पूरे ताकत से काम करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आता है? तो उसको बहुत सिंपल एक एग्जांपल है, उसे समझते हैं. समझो कि मैंने नहाने के लिए पानी गर्म किया, ऑलराइट, मगर मेरा स्टाइल क्या है? 1 लोटा गर्म पानी, 1 लोटा ठंडा पानी, 1 लोटा गर्म पानी, 1 लोटा ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी. कभी पानी गर्म ही नहीं होगा. बीच बीच में से जो हम नेगेटिव विचार आ जाता है, बीच में से लोग नेगेटिव विचार दे देते हैं, तो उससे वो डिले होने लगता है. हाँ, मगर पॉइंट क्या है? हमको कंटिन्यूअसली पॉजिटिविटी पे फोकस करते रहना चाहिए. कब तक करना चाहिए? जब तक हमें पहला रिजल्ट नहीं आता है. एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सूरज हमारे से कई कई मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ माइल दूर है, और लाइट का स्पीड क्या है? लाइट ट्रेवल्स एट 3 लाख माइल्स इन अ सेकेंड. 3, इतना फास्ट स्पीड है. सूरज इतना बड़ा रोशनी दे रहा है, मगर फिर भी वो रोशनी पृथ्वी पे पहुंचने के लिए 8 मिनट्स एंड 33 सेकेंड्स लगते हैं.
ओह, यानी कि जो अभी आपको बाहर खिड़की के बाहर जो लाइट नजर आ रहा है वो 8 मिनट्स 33 सेकंड्स पहले सूरज ने छोड़ा था, मगर मुझे कंटिन्यूस लाइट नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि सूरज ने सिर्फ एक ही रे छोड़ के रुक नहीं गया, वो उसके पीछे ठीक दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, तो वो कंटिन्यूसली ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमको कंटिन्यूस लाइट दिखाई दे रहा है। तो हमें अपने लाइफ में भी क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली फोकस रखना पड़ेगा, बिकॉज सभी चीजें हमारे इर्द गिर्द में एनर्जी है, सभी चीजें वाइब्रेट कर रही है और ये वाइब्रेशंस हम कैच कर सकते हैं। सो आवर एफर्ट हैज टू बी कंटिन्यूअस, और बीच में से गर्म पानी ठंडा पानी किया तो ये वापस से नीचे चला जाएगा। What actually happening in our real life is, you can take an example of our family also, or you can take an example of our colleagues or bosses, who want everybody wants everybody should be happy, right, and good healthy life. I don't know that. I don't know whether everybody wants that. how because we are trying to take a lot of efforts on our families, or yeah, what is your question, sir? Since we have less time, I just want to ask you to quickly come to your question. Sir, yeah, so if we want to convince on any part, say personal part or official part, yes, so and we are working with full focus, then full positive energy. Yeah, in spite of that we are not getting the results. So I explained to you that your focus and your continuous thoughts, you have to be really focused on what you want, right, Santosh? So our focus and how, because everything is energy and you are attracting those energies in your life, which frequency you are vibrating on, that you need to check. All right, your mind and your body and your thoughts and your eyes and your ears, they are all receivers. They are receiving continuously from the world. They are also broadcasting. So what you're receiving, what you're giving out, that is what is very important here. So I'm going to move on now to understand, is there a more better way to use the law? Well, here it is. तो कुछ लोग कहेंगे कि भैया अभी तो मैं कंटिन्यूसली अच्छी चीज पे फोकस नहीं कर सकता, तो क्या करें? सो इन आवर ब्रेन सेल्स आर लाइक memory files. There are lots of tons of memory files are there inside the brain cells. So if you can jump inside your brain and go to a happy memory, you automatically get tuned to your positivity and this high frequency. But if you're focused, you go back in the brain and you're focused on your negative or sad memories, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये जब हम memories क्रिएट करने लगते हैं तो वो सैडनेस हमारे अंदर देना शुरू कर देता है। तो एक हमारे पास में जरिया है फाइन ट्यून करने का कि अब अपने दिमाग में जाओ, फ्लैशबैक में हैप्पी मेमोरीज के फाइल्स ओपन करो और वहां से भी हम एनर्जी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी एनर्जी है। कुछ लोग अपने हेल्थ के लिए भी इस पर काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं? अगर आप आंख बंद करके अपने आप को अपने वो पिक्चर्स दिखाते हैं जो बचपन में आप कितने स्ट्रांग थे, कैसे दौड़ते थे, पेड़ पर चढ़ जाते थे, दिन भर क्रिकेट खेलते थे, धूप में खेलते थे, टैप से पानी पीते थे, कुछ नहीं होता था, हम कितने स्ट्रांग थे, कितने दौड़ते थे। तो ये अगर आप दोबारा से अपने मन को पिक्चर्स दिखाना शुरू कर दे तो हम वापस से वो पॉजिटिविटी, हमारा जो माइंड है वो ट्रू और फॉल्स पिक्चर्स में फर्क नहीं कर सकता। तो अगर आपको हेल्थ के वाइब्रेशन चाहिए तो अपने आप को अपने पिक्चर्स दिखाना पड़ेगा उस मेमोरी के अंदर जाके कि आप कितने हेल्दी थे, कैसा था आपका फिजिक। गो बैक एंड इनटू दोज हैप्पी मेमोरीज। बट होता क्या है, हम आईने के सामने खड़े रहते हैं और अपना प्रेजेंट देखते हैं और उधर से अपना फ्यूचर डिसाइड करने का, अरे मेरा वजन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यही गलती होने लग जाती है। तो आप एक जमाने में बहुत हेल्दी थे तो वो पिक्चर्स निकालो और वो फ्लैशबैक में जाके वो अपने ब्रेन को दिखाओ, वहां से चेंज शुरू हो जाएगा। तो कोई कहेगा यार मैं इतना कहां पर जाऊं, अंदर से निकालो, मेरे को हैप्पी वाइब्रेशन पे कैसे आ जाऊं मैं? आप कोई म्यूजिक सुनो, अच्छा
क्या बात। YouTube में आप जाके कोई, मैं ऐसे करता हूं, मैंने क्या किया अपने YouTube से, मुझे बारिश की आवाज ना बहुत पसंद है। आई लव द साउंड ऑफ रेन। तो मैंने YouTube पे जाके देखा कि रेन का एक बहुत ही सुंदर 1 घंटे का म्यूजिक है, सिर्फ बारिश, हैवी बारिश। जब हैवी बारिश आती है तो कैसी आवाजें आती है, जब बारिश छत से छूती है, जमीन पर गिरती है, पानी पे टपकती है, वेरी ब्यूटिफुल। आप सिर्फ वो लगा दो अपने कान में 1 hour and just relax, and you'll start feeling that you get into a high frequency waves. You get into high energy. It is automatic. So either you can listen to something great, some strong happening music that you love, automatically you'll get to a higher vibration. So that is a second way to get to a great vibration, right? अगर आपको बुरा फील हो रहा है, इसका मतलब ही ये सीधी बात है कि आपने जो एंटीना है रॉन्ग थॉट्स पकड़ लिए आपने। तो तुरंत उसको चेंज करो, क्योंकि जो हमारे फीलिंग्स है वो हमारे अंदर एक गाइडिंग सिस्टम है, गाइडिंग मैकेनिज्म है, जो बताता है कि आप सही दिशा में सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी आर गोइंग टू क्लोज इन अनदर 5 to 10 minutes. ऑलराइट। अभी हम हमेशा अपने विचारों को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, हम मेमोरी में नहीं जा सकते, म्यूजिक नहीं सुन सकते, तो क्या करें? तो हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। वर्ड्स को हम इसको कहते हैं अफर्मेशंस। अभी ये मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई है अफर्मेशंस की। दिस आर वेरी पावरफुल थिंग्स। इसको हम मंत्रा भी बोल सकते हैं, हम खुद अपना एक मंत्र बना सकते हैं। जैसे आई एक्सपेक्ट मिरेकल्स डेली, I expect miracles daily. Wow. I am God's property. No evil can touch me. सुंदर। जब भी आपको ऐसा विचार आएगा कि ये कोरोना वरोना चल रहा था, आप क्या बोलोगे? I am God's property. No evil can touch me. आप जितना स्ट्रांगली इसको बोलोगे, I am God's property. No evil, यानी कि मैं ईश्वर की दौलत हूं, मुझे गलत शक्ति छू नहीं सकती। और पूरे कन्विक्शन के साथ में आप जब बोलोगे तो आपके इर्द गिर्द एक कवच कुंडल जैसे होते ना, ऐसा एक ऑरा बन जाएगा जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। हमारा माइंड सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकता है। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव एंड हेल्दी। ब्रिलियंट। आई एम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। वाओ। देयर इज नो कॉम्पिटिशन ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन। वट एवर इज राइटफुली माइन इज गिवन टू मी। जो मेरे लिए जो बना है वो मुझे मिलते ही जा रहा है। हेलो, चाहूंगा कि लोग प्लीज म्यूट। हाँ बोला सर। हाँ, एक्सक्यूज मी, प्लीज बी ऑन म्यूट। गाड़ी नहीं हो, somebody is on उधर मतलब डबल जगह है। okay, हाँ पार्टी please be on mute, please be on mute. हाँ ओके। whoever is this person, कि मेरा बिजनेस का क्या होगा, अभी ये वायरस है, ये लॉकडाउन है। आप सिर्फ इतना बोलो, whatever is rightfully mine is given to me। जो भी आपके लिए है, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लेन पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। जो आपका है आपके पास आ ही रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है। whatever I do is fun and comes easily and makes money। जो लोग अपने करियर को लेके थोड़ा परेशान है, उनके लिए सॉलिड है ये। whatever I do is fun, it comes easily and it makes money। मैं 2 दिन पहले एक मूवी चल रही थी, मेरी जंग, और उसमें एक सॉन्ग आ गया, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मैं बोला ये सही नहीं है सेंटेंस। द मोमेंट यू से जिंदगी एक जंग है, तो वो जंग वाले, वॉर वाले थॉट्स, एनिमी, वो सब आपको इर्द गिर्द घेर लेंगे और वैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे शब्द बोल रहे हो। I see my purse crammed jam with money. Oh, I see my purse crammed jam with money. यानी कि मैं अपना वॉलेट कैसा देख रहा हूं? Cram jam with money. What a nice sentence to say. मेरा पर्स हमेशा क्रैम जैम्ड है पैसे के साथ।
everything happens according to the divine plan in perfect condition, or give me its equivalent or better. मैंने पहले प्रोग्राम में डिवाइन प्लान के बारे में बताया था, एक मास्टर प्लान जो हमारे सभी के लिए है. तो आप सिर्फ ये भी बोलते रहे कि हर चीज मेरे लाइफ में ना डिवाइन प्लान से हो रही है. डिवाइन प्लान से. डिवाइन प्लान एक बड़ा प्लान है, ईश्वरीय प्लान है जो हम सभी के लिए है. हर चीज हमारे लाइफ में डिवाइन प्लान से हो रही है. कुछ लोगों को शादी करना है तो आप बोल सकते हैं कि भाई डिवाइन पार्टनर मेरे लाइफ में आ रहा है. कुछ लोगों को नौकरी चाहिए, बोले डिवाइन जॉब मेरे पास में आ रहा है. तो ये डिवाइन प्लान एक परफेक्ट प्लान है जो सभी के लिए है. तो हम ये अफर्मेशंस अपने लाइफ में कर सकते हैं. सिर्फ मैंने जो बताया वही है कि नहीं, आप खुद कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. आपके हिसाब से आपको जो लगता है वो आप अफर्मेशन बना सकते हो. सिर्फ आपने हेल्थ 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 भी बोल दिया तो हेल्थ क्रिएट हो जाएगा. सिर्फ स्वस्थ, मैं स्वस्थ हूं ये बोलना शुरू कर दिया तो भी उसका रिजल्ट आएगा. पॉइंट ये है कि हम ऐसी चीजें बोलते ही नहीं है. कभी हमने अपने आप को बोला कि आई एम फिट स्ट्रॉन्ग स्मार्ट एनर्जेटिक, फिट स्ट्रॉन्ग स्मार्ट एनर्जेटिक, फिट स्ट्रॉन्ग स्मार्ट एनर्जेटिक, फिट स्ट्रॉन्ग स्मार्ट एनर्जेटिक. अपने आप को इस विचार से घेर लो कि मैं फिट हूं, स्ट्रॉन्ग हूं, एनर्जेटिक हूं, स्मार्ट हूं. फिट स्ट्रॉन्ग स्मार्ट एनर्जेटिक. The moment you start saying that, those vibrations start changing your cells in the body. हमारे बॉडी के सेल्स बदल सकते हैं. जैसे आप अफर्मेशंस रखते हो उसके हिसाब से सब कुछ बदलता है. हाईएस्ट फिर क्या हम करें? अभी जैसे कि हमारे को ये पता चल गया है, we understand there is a law of vibration, और अभी ये इसका ज्ञान भी मिल गया हमको. तो हम अभी क्या क्रिएट करें? हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या है? वो है लव. जैसे मैंने आपको चित्र दिखाया यहां पर, अभी पृथ्वी को हीलिंग का जरूरत है. और एक्चुअली फैक्ट ये है कि नेचर अपने आप को हील कर रहा है. मैंने कुछ ऐसे भी वीडियोस देखे जहां पर हाथी रास्ते से घूम रहा है, पीकॉक्स डांस कर रहे हैं, यमुना का पानी क्लीन हो रहा है, ओजोन लेयर भी हील हो रहा है. अगर हम करुणा बोले इसको तो कैसा रहेगा? इट इज ग्रेस. सो लव, जॉय, पीस, ऐसे वाइब्रेशंस हम रिलीज करें. कैसे रिलीज कर सकते हैं ऐसे वाइब्रेशंस? सिर्फ आप ये ग्लोब देखो जो आपको फोटो नजर आ रहा है, और उसके ऊपर लाइट डाल दो, एक व्हाइट लाइट, स्पॉट लाइट आता है ना, जैसे आपने देखा रहेगा थिएटर में, पूरा अंधेरा स्टेज, एक स्पॉट लाइट आता है, फिर एक आदमी चलकर आता है उसमें से. तो ये हीलिंग रेज है. अब वो रेज देखो पृथ्वी के ऊपर कि पृथ्वी हील हो रही है और पूरा व्हाइट हो रहा है ग्लोब. आपके कुछ रिश्तेदार है जो दूर है आपसे, आपको पता नहीं उनके साथ में क्या हो रहा है, तो ये फियर आ जाएगा. तो बेस्ट क्या है, उनके ऊपर भी वो हीलिंग के रेज डाल दो, क्योंकि हमारे विचार ट्रैवल कर सकते हैं टाइम और स्पेस के थ्रू. और ऐसे अच्छे विचार रखने का इट कॉस्ट नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. इट इज फ्री. जस्ट वाइब्रेट ऑन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज पॉसिबल. तो ये हम जरूर करें. और एक अफर्मेशन है हमारे सभी के लिए जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं. और मैं सिर्फ ये दिखाने वाला नहीं हूं, मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग इसको ध्यान से सुने. जितना आप रिदम से, प्यार से इसको दोहराओगे, उतना उसका जबरदस्त असर हमारे जीवन पर होने वाला है. तो मैंने क्या किया, इसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के ट्यून पे इसको फिट किया है, डे बाय डे को. तो पहले एक बार सुन ले सभी, फिर आप अपने घर में इसको गा सकते हैं. इधर माइक ऑन करके मत गाइए, क्योंकि यहां पर एक टाइम पे एक ही बात कर सकता है. सो लिसन टू दिस. इट गोज दिस वे. Day by day, in every way, I am getting better and better. Day by day, in every way, I am getting better and better. Day by day, in every way, I am getting better and better. Day by day, in every way, we are getting better and better. सभी गाय अपने घर में इसको. डे बाय डे, इन एवरी वे,
We are getting better and better day by day in every way. We are getting better and better day by day in every way. We are getting better day by day. जितना आप उसको प्यार से दोहराओगे, जितना कन्विक्शन से उसको रिपीट करोगे, उतना उसका रिजल्ट आने वाला है. तो ये सॉलिड अफर्मेशन है जो हम सभी यूज कर सकते हैं. मुझे यकीन है आप इसको इसी ट्यून में रिपीट करोगे अपनी लाइफ में. एंड नॉट जस्ट दैट, हर रात जब भी आप सो जाते हो तो सोने से पहले इसको एटलीस्ट 15-20 टाइम्स रिपीट करके बाद में सो जाओ. हमारे विचार ट्रैवल करेंगे और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं पृथ्वी पर, वो सभी विचार एक हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा जो इस पृथ्वी को भी हील करेगा, ह्यूमन बीइंग्स को भी हील करेगा, पूरे नेचर को भी हील करेगा. और मैं आपको ये बता रहा हूं तो आप सवाल ये जरूर पूछ सकते हैं कि अरे यार आपने ये बताया, आपने कितना प्रैक्टिस किया इसका. ये जो प्रोग्राम मैं ले रहा हूं मैंने 1996 में ये अटेंड किया था और तभी से मैं इसका ट्रेनर भी हूं. और मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा ही ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को ब्रॉडकास्ट भी किया है, लोगों को बताया भी है और रिसीव भी किया है. तो ये पिछले 20-22 साल से मैं ये काम कर रहा हूं. तो अब यकीन जाने इसका रिजल्ट बहुत ही सॉलिड है. सो दैट इज द लास्ट स्लाइड दैट आई हैव. लास्ट स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं कि पहला जो प्रिंसिपल था उसमें हमने देखा कि जिंदगी के सभी लेसन्स है और हमें लेसन्स को डिकोड करना है. दूसरा जो प्रिंसिपल है, हमने ये जाना कि हर चीज एनर्जी है, हर चीज फ्रीक्वेंसी है, वेव्स है, वाइब्रेट हो रही है, तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें. ये हमने सेकंड इसमें अभी समझा. मुझे यकीन है आपको ये मजा आ गया रहेगा, बहुत पसंद आया रहेगा. मैं आखिरी के 5 मिनट क्वेश्चन आंसर्स को देना चाहता हूं. आई होप यू लाइक दिस. सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन नाउ आस्क मी. प्लीज ट्राई टू लिमिट फॉर just 1 or 2 lines. Before we start question answer, this is Mahesh here. Yes, Mahesh. सबके लिए मैं यहाँ पर एक लिंक दे रहा हूँ. फेसबुक के ग्रुप का लिंक है. इस ग्रुप में सब लोग ज्वाइन हो जाएं ताकि इसमें जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको मिलते रहेंगे इस विषय के रिलेटेड. और आगे के ट्रेनिंग्स में आगे के जो भी लेक्चर्स होने वाले उसको हम फेसबुक के इस ग्रुप में डालने वाले. तो आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए. थैंक यू. अच्छा महेश, के हम लोग उनको हमारे लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी देने वाले हैं वहां पर? हाँ, हमारे इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग उस ग्रुप पे डाला हुआ है. तो अगर आपको ये लेक्चर दोबारा से सुनना है या किसी को सुनाना है तो आप वो फेसबुक पेज जो लिंक महेश दे रहा है सभी उस पर ज्वाइन हो सकते हैं. आपको जो पहले प्रोग्राम हो गया था उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा सुनने के लिए, इन केस यू आर इंटरेस्टेड. Thank you, Mahesh. I am ready to take any question you have. I have time only for a few questions. Go ahead. Yes, Rajesh, you are raising your hand. Go on, ask us. Right. Nitin sir, thank you for consecutive second day. First day का भी मैंने अभी महेश सर ने जो बोला, so मैंने वो recording सुना, फिर से एक बार revision हुआ. It is really good. आज के बारे में it is not a question, just a sharing from my end. ये जो vibrations होता है ना, हम नेचर के जितने पास रहेंगे उतने हमारे वाइब्रेशन स्ट्रांगली काम करेंगे. बिकॉज इफ यू सी ब्यूटीफुल एनिमल्स जो होते हैं, जंगल के एनिमल्स, इनका ह्यूमन बीइंग से ज्यादा उनका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होता है. द रीजन इज दे आर मोर क्लोजर टू नेचर. बिकॉज वी आर स्टक इन बिल्डिंग्स एंड कॉन्क्रीट जंगल, हमारे इंट्यूशन उतने स्ट्रांग नहीं है. बट द आपने अभी जो भी उपाय बताया है इनके साथ वी कैन डेफिनेटली मेक आवर इंट्यूशन स्ट्रांग. थैंक यू सर. Definitely. Thank you very much, Rajesh. Thank you for sharing. Anybody else has a question or a sharing or a comment? Please go on. So, Yes. so earlier when you said that fear of an animal, Correct. but still like that animal will bark at you. Correct. Why is it that like that animal can sense your fear and it still comes closer to you? Oh no, it's actually trying to save itself.
How is that? See, fear is the base of anger. All right. So when a person is angry, the base is fear. So the animal is angry; it's expressing in barking towards you, right? But actually, it is fearful inside. Okay. That is why it starts barking. All right, starts protecting its territory. That's how animals behave. Right. Yes, does anybody else have a question? Please limit your question to 1 or 2 lines. Well, I am sensing there is silence, so I will take this as a no question. I hope everybody enjoyed this series. I'm going to see you day after again and same time. Sir, can it possible to change our time at morning, because that is very fresh time that I was requested to you. Yes, I felt this time is where everybody is having had lunch and they are relaxed. So that is why we chose this time. Mornings, especially housewives and all, they have a lot of work to do. Now the work is probably doubled. So that is why we chose this time, and I am getting good traction with this time as well. So that's why we chose this time. Okay. Thank you very much, people. Thank you. But Thank you, program sir. is very good. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. धन्यवाद सर. धन्यवाद. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir.